کوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مانند اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا جو نجات دہندہ کے لیے راہ تیار کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پہلے انسان ہوں گے جو حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی قریب ہے، یہ اعلان کرتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دی۔ جب لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیغام قبول کیا تو وہ اصطباغ کی رسم میں شریک ہوئے اور پانی میں غوطہ لیا۔ یہ پاک صاف ہونے اور صراط مستقیم پر چلنے کے اقرار کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ ایک روز حضرت عیسیٰ المسیح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہ جان کر کے حضرت عیسیٰ المسیح کون تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان سے استباغ لینے کی درخواست کی۔ وہ میں ہوں جسے آپ سے استباغ چاہیے، پھر بھی آپ میرے پاس آئے؟ لیکن حضرت عیسیٰ المسیح کے نام میں استباغ لینے کا ابھی وقت نہیں آیا تھا، لہٰذا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ المسیح کو استباغ دیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ المسیح پانی سے باہر آئے تو روح القدس حضرت عیسیٰ المسیح پر اترا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا فرزند ہے جس سے میں بہت خوش ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ المسیح نے بیابان کو رخ کیا کہ شیطان ان کی آزمائش کرے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کامیاب اور شیطان ناکام رہا۔ بیابان کا یہ ٹکراؤ ایک امتحان تھا، جیسے سونے چاندی یا کسی قیمتی دھات کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے اسے پرکھا جاتا ہے۔ یہ امتحان حقیقت میں کلمت اللہ کے لیے تھا جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے آئے تھے۔ شیطان کو شکست دینے کے بعد حضرت عیسیٰ المسیح روح القدس کی قوت سے معمور بیابان سے باہر آئے۔ جلد ہی لوگ ان کے مرید ہونے لگے۔ ان میں زیادہ تر عام اور معمولی لوگ تھے، پر ان کو حضرت عیسیٰ المسیح میں کچھ خاص اور انوکھا نظر آتا تھا۔ کچھ اپنا روزگار چھوڑ کر حضرت عیسیٰ المسیح کے پیچھے چل پڑے۔ ان میں کچھ ماہی گیر تھے جن سے انہوں نے کہا تھا میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا۔ ہمارے ساتھ رہو۔ اپنے مریدوں میں سے انہوں نے صرف 12 کو چنا جو بعد میں ان کے حوارین کہلائے۔ تقریباً 3 برس تک انہوں نے حضرت عیسیٰ المسیح کے ساتھ سفر کیا اور ان سے سیکھا۔ انہوں نے دنیا کو ان کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروکاری کے لیے ان اشخاص کو جس مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا وہ ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا۔ آسمان کی بادشاہی ایک حضرت عیسیٰ المسیح اپنے حواریوں کے ہمراہ جہاں جاتے وہاں بھیڑ لگ جاتی۔ وہ بات کرنے میں ماہر تھے، زبردست کہانیوں اور امثال کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم سکھایا اور انہیں ان راہوں پر چلنے کی تاکید کی۔ آسمان کی بادشاہی آن پہنچی۔ ابھی یہ وقت خوشی منانے اور حضرت عیسیٰ المسیح سماج کے ٹھکرائے ہوئے اور شکستہ دل لوگوں کے دوست اور مغروروں کے دشمن تھے۔ اور چوما وہ پورے اختیار کے ساتھ کلام کرتے تھے، لیکن ان کا کام صرف باتوں تک محدود نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنا رحم اور اختیار معجزات سے ثابت کیا۔ انہوں نے مزور طوفانوں کو روکا اور ٹھاٹھے مارتے سمندر پر چلے۔ 2 بار انہوں نے چند روٹیاں اور مٹھی بھر مچھلیاں لے کر ہزاروں لوگوں کی بھوک مٹا دی۔
हजरत ईसा मसीह ने अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलने की कुव्वत और खतरनाक बीमारियों में मुब्तला मरीजों को शिफा बख्शी। उन्होंने लोगों में से बदरूहों को निकाला और मुर्दों को भी जिंदा किया। 30 बरस तक उन्होंने फर्माबरदारी और खामोशी में जिंदगी गुजारी थी, लेकिन अब वो जिस्मानी और रूहानी दुनिया पर और मौत और जिंदगी पर अपना इख्तियार दिखा रहे थे। देखते ही देखते हजरत ईसा अल मसीह की खबर हर तरफ फैल गई। कई सौ साल पहले एक इब्रानी नबी ने यह लिखा था कि अल्लाह ताला के अहद करदा बचाने वाले की आमद पर नाबीना देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े हिरन की तरह भागेंगे और जो बोल ना सकते थे खुशी से पुकारेंगे और खुशखबरी की बिशारत होगी। जो आने वाले की उम्मीद लगाए बैठे थे वो पूछते थे, क्या ये हजरत ईसा अल मसीह हैं? ज्यादा लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं थी कि वो कौन है, बल्कि इसकी कि वो उनके लिए क्या करेंगे। और दूसरे लोग जैसे इब्रानी मजहबी रहनुमा ये सोच सोच कर परेशान थे कि वो इस करामात करने वाले इंसान को क्या नाम दे। पर उस्ताद ये मजहबी रहनुमा हजरत ईसा अल मसीह पर सवाल करने के मौके की तलाश करने लगे। इनमें चंद को दर हकीकत अपने मजहब के वसीले अल्लाह ताला को जानने की ख्वाहिश थी, लेकिन बहुत से मगरूर और बनावटी थे। उनका मजहब ही उनका खुदा बन चुका था। वो किसी तौर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि लोग हजरत ईसा अल मसीह को उनसे ज्यादा इज्जत दें। उनका मकसद हजरत ईसा अल मसीह को नीचा दिखाना था। उन्होंने उनसे पूछा कि वो किस इख्तियार से ये करामात करते हैं, वो नापाक और गुनाहगार इंसानों से क्यों मिलाप रखते हैं। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। जाने दो। मसला क्या है? ये यहाँ क्या कर रही है? उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये थी कर रही है। कि हजरत ईसा अल मसीह लोगों से ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारे गुनाह माफ हुए, अब बिल्कुल नहीं रहे। क्योंकि गुनाह माफ करने का इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह ताला का है। देखा तुमने? बिल्कुल। ये क्या कह रहा? वो सब कुछ करके जो सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है। हजरत ईसा अल मसीह दर हकीकत अल्लाह ताला होने का दावा कर रहे थे, जिसकी इब्रानी कानून के मुताबिक सजाए मौत थी। जा, फिर गुनाह न करना। ज्यों ज्यों हजरत ईसा अल मसीह की मुखालफत ने जोर पकड़ा, उन्होंने अपने हवारियों को अपने मिशन का असल मकसद समझाना शुरू किया। तुम मुझे क्या कहते हो? उन्होंने फरमाया कि मैं जल्द ही मजहबी रहनुमाओं के हवाले किया जाऊंगा और मार दिया जाऊंगा। 3 रोज बाद मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। हवारियों ने उनकी बातें सुनी, लेकिन वो इन बातों को पूरे तौर से ना समझ सके और ना मान सके।
इब्रानी लोग हर साल ईद फसा मनाते थे। लोग दूर दूर से इस ईद को मनाने के लिए यरूशलेम शहर में आते थे। ये वक्त उस याद को ताज़ा करने के लिए था जब अल्लाह ताला ने इब्रानियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया था। जब फिरौन बादशाह ने इब्रानियों को आज़ाद करने से मुसलसल इनकार किया तो अल्लाह ताला ने मिस्र के हर पलौठे पर मौत नाजिल की, लेकिन उन घरों में रहने वाले जिनके दरवाजे की चौखट पर कुर्बानी का लहू लगा था इस आफत से महफूज रहे, क्योंकि वे लहू से ढके थे। और फिर ऐसा हुआ कि हज़रत ईसा मसीह, जिन्हें हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का बरा कहकर पुकारा था, यरूशलेम ईद फसा मनाने के लिए गए। अब वो इस कदर मशहूर थे कि लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया और होशना के नारे बुलंद किए, जिसका मतलब है हमें अब बचा। ये वाहिद मौका था कि हज़रत ईसा मसीह ने अपना ऐसा इस्तकबाल कबूल किया, पर उसकी एक वजह थी। उन्हें मालूम था कि मज़हबी रहनुमा को ये बात नागवार गुजरेगी, लेकिन ऐसा करके वो उन्हें उस मंसूबे के एक कदम करीब ला रहे थे जो इब्तिदा से बेशतर बन चुका था। मेरे पास आओ। ईद फसा के दिनों में हजरत ईसा मसीह ने लोगों में अपनी खिदमत जारी रखी। उन पर अब मजहबी रहनुमाओं की कड़ी नजर थी। चंद लोग हजरत ईसा मसीह के करीब आ चुके थे, लेकिन ज्यादातर उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। सरदार कहीं ना आ रहे हैं। मजहबी रहनुमाओं ने वक्त के साथ उन कवानीन में सैकड़ों और कानून शामिल कर दिए जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए थे। ये क्या कहता है? रियाकान फकीयों और फरीसियों। जब हजरत ईसा मसीह ने सरेआम मजहबी रहनुमाओं का सामना करते हुए बताया कि किस तरह मजहबी रहनुमा लोगों के लिए सराते मुस्तकीम पर चलना दुश्वार करते हैं, तो बात और बिगड़ गई। इस कौम से बचेगा इस शहर में जो अल्लाह ताला के नाम से आता है, क्योंकि तुमने कलमतुल्लाह का यकीन न किया, यानी अल्लाह ताला का। मजहबी रहनुमा अब हजरत ईसा मसीह के मसले को जल्द हल करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने फौरन मजलिस बुलवाई। उन्हें इस बात का खौफ था कि अगर हजरत ईसा मसीह को खामोश न किया गया और वो यूं ही अवाम को उभारते रहे तो वो बैरूनी कुव्वत जो उन पर हुक्मरान है मदाखलत करके उनका रहनुमाई का रुतबा खत्म कर देगी। उनके पेश नज़र सवाल ये नहीं था कि हजरत ईसा मसीह को खत्म करना चाहिए, बल्कि ये कि वो उसे कैसे खत्म करें, और ऐसा करने के लिए एक मंसूबा तैयार किया गया। उधर हजरत ईसा मसीह अपने हवारियों के हमरा ईद फसा मना रहे थे, क्योंकि ये मेरा बदन है। उन्होंने फसा की रोटी ली, उसे तोड़ा और फरमाया, जिंदगी की रोटी है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। फिर अंगूर का रस लिया जो ईद फसा की कुर्बानी के लहू की जगह था, जो इब्रानी घरों के दरवाजों पर लगाया गया था, और फरमाया, ये मेरा लहू है जो बहुत लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। तुम में से एक मुझे धोखा देगा। उनके एक हवारी के दिल में शैतान समाया था और वो जानते थे, सो उन्होंने इसे ये कहकर रवाना किया कि जा, जो तेरे दिल में है कर। हजरत ईसा मसीह अपने बाकी हवारियों के साथ रहे और उन्हें मुस्तकबिल के बारे में बताने लगे। उन्होंने फरमाया, मुझे जल्द अल्लाह ताला के पास जाना होगा ताकि जन्नत में तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें सताया जाएगा। पर हजरत ईसा मसीह ने उनसे फरमाया, तुम घबराना नहीं, अल्लाह ताला का रूह आकर तुम्हारा मददगार होगा, वो तुम्हें तसल्ली देगा और सही वक्त मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। ये फरमाने के बाद हजरत ईसा मसीह ने दुआ की और वो सब एक करीबी बाग में गए।